This month we are talking about the questions Jesus raises. इस महीने हम उन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो प्रभु श्री यीशु उठाते हैं। Lord Sri Jesus, in his conversations and in the incidents that centered around Lord Sri Jesus, we see several questions that are raised. प्रभु श्री यीशु अपनी वार्तालाप में और उन घटनाओं में जो प्रभु श्री यीशु से संबंधित है कई प्रश्नों को उठाते हैं। And it is good to look at those questions. और ये अच्छा है कि उन प्रश्नों पर हम विचार करें। Because that questions need an answer. क्योंकि उन प्रश्नों का जवाब की जरूरत है। Some answers we get from God. और कुछ जवाब हम परमेश्वर के पास से पाते हैं। Some answers we have to give as a response to God. और कुछ जवाब हमें देना है उस प्रत्युत्तर में उस प्रश्न के। And I remember a story. और मुझे एक कहानी याद है। And this story is about Lord Jesus and a little boy. और ये प्रभु श्री यीशु और एक छोटे बालक की कहानी है। We do not know how old that boy was. और हमें नहीं मालूम कि वो बालक कितना बड़ा था। Sometimes I think that he might be like Arjun. और मैं कई बार सोचता हूँ कि वो हो सकता है अर्जुन के समान रहा हो। Or he might be like David. और हो सकता है डेविड के उम्र का हो। I don't know their names, otherwise I will store their names. What are your names? Grant and Grant. So he was a little boy. I do not know how old he was. और मुझे नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा था, छोटा बालक था। But he might be 10, 12 years old. हो सकता है वो 10-12 साल का रहा हो। And Lord Jesus had gone to this big mountain. और प्रभु श्री यीशु इस बड़े पहाड़ पर गए हुए थे। And he went there with 3 of his closest disciples. और वे अपने 3 सबसे नजदीकी शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। And he had spent the night there. और वहाँ पर उन्होंने उस रात को व्यतीत किया। And at that time they saw the transfiguration of Lord Jesus. और उस समय उन्होंने प्रभु श्री यीशु का रूपांतरण देखा। Rest of the disciples were down there and they had not climbed up the mountain. और बाकी शिष्य नीचे थे, वे पहाड़ पर नहीं चढ़े थे। In the morning they were Lord Sri Jesus and the 3 disciples were coming down. और सुबह प्रभु श्री यीशु और 3 शिष्य नीचे आ रहे थे। From far, while they were coming down, they could see a large crowd that were gathered around the disciples. और जब वे नीचे आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री यीशु के बाकी शिष्यों के आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठा है। And then when they were coming closer, they saw that they were talking. और जब वे नजदीक आए तो उन्होंने देखा कि वे बातचीत कर रहे हैं। It didn't look like they were just talking; they were actually debating. और ऐसा नहीं लगता है कि वे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे वाद विवाद कर रहे हैं। And there was a fierce debate that was going on between the teachers of the law and the disciples, and there was a big crowd around and listening to this debate that was going on. और एक बड़ा वाद विवाद वहाँ पे चल रहा है प्रभु श्री यीशु के शिष्यों के बीच में और जो न्याय देने वाले हैं उनके बीच में। And as Lord Sri Jesus came closer, और जैसे जैसे प्रभु श्री यीशु नजदीक आते हैं, one of the persons in the crowd, he saw Lord Sri Jesus coming. और भीड़ में से एक ने देखा कि प्रभु श्री यीशु आ रहे हैं। And he said, "Oh, see, Lord Sri Jesus is coming." और उन्होंने कहा कि देखो प्रभु श्री यीशु आ रहे हैं। So while the disciples and the teachers of the law were arguing about something, all the crowd they ran up to Lord Sri Jesus. और जब प्रभु श्री यीशु के शिष्य और जो धार्मिक अगुवे थे वे आपस में वाद विवाद कर रहे थे, सारी भीड़ प्रभु श्री यीशु They की were ओर very attracted by Lord Sri Jesus and they wanted to come him and greet him and touch his feet and do namaste to him. और प्रभु श्री यीशु से वो बहुत ज्यादा आकर्षित थे। वे आकर प्रभु श्री यीशु को स्पर्श करना चाहते थे, उन्हें नमस्कार करना चाहते थे, उनके पांव स्पर्श करना चाहते थे और उनसे बात करना चाहते थे। And Lord Sri Jesus asked them a question. और प्रभु श्री यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, What are you arguing with them about? कि आप लोग उनसे क्या वाद विवाद कर रहे थे? And it's a good question. और एक अच्छा प्रश्न है। There are instances when we argue. और कई बार हम वाद विवाद करते हैं। Sometimes there is debate. और कई बार वाद विवाद होता है। And there is some value in that. और उसमें कुछ मूल्य है।
But more value is there if we have a dialogue. और उससे ज्यादा अगर वार्तालाप हो तो वहाँ पर ज्यादा मूल्य है। In an argument and a debate, the idea is one person will win and the other will lose. और एक वाद विवाद में यह है कि एक व्यक्ति जीतेगा दूसरा हारेगा। Most of the time, both the parties have to go away after the debate is over. और बहुत बार वाद विवाद के बाद दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे से जुदा हो जाना पड़ता है। It might be of better value if we have a dialogue. अगर हम वार्तालाप करें तो उसमें ज्यादा मूल्य है। Dialogue is reciprocal. और जो वार्तालाप है वह दोनों तरफा है। It goes to and fro. और वह जाता है और वापस भी आता है। In that both the parties are willing to listen to each other and learn from each other. और उसमें दोनों तरह के लोग एक दूसरे की सुनना और एक दूसरे से बात करना चाहेंगे। One fallacy is that we may enter into an argument. और एक उसमें गलत विचारधारा यह है कि हम उसमें वाद विवाद में उतरेंगे। Another fallacy is we might turn into monologue. और दूसरी गलत विचारधारा चीज यह है कि हम एक तरफा बात में उतरेंगे। Argument has got negative value. और जो वाद विवाद है उसका नकारात्मक उसका मूल्य है। And monologue also has negative value. और एक ही व्यक्ति बोलता जाए उसमें भी नकारात्मक मूल्य है। Monologue is when one person speaks all the time and there is no time even for the other person to respond or to say anything. और एक ही व्यक्ति बोलता जाए उसमें यह है कि एक ही व्यक्ति पूरे टाइम बोल रहा है और सामने वाले को उसका प्रत्युत्तर देने का कोई मौका नहीं है। Lord Sri Jesus' disciples, प्रभु श्री यीशु के शिष्य they sometimes enter into a dialogue with people. और कई बार वे लोगों के साथ बातचीत में उतरते हैं। And it is good to have a dialogue. और ये अच्छा है कि वार्तालाप किया It should जाए। be a reciprocal dialogue. और ये आदान प्रदान करने वाला वार्तालाप होना And we चाहिए। can learn from each other. और हम एक दूसरे से सीख सकें। But Lord Sri Jesus is interested in what we are talking about. किंतु प्रभु श्री यीशु इस बात में रुचि रखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। It is important what the followers of Lord Jesus think about a certain issue. और ये महत्वपूर्ण है कि प्रभु श्री यीशु के शिष्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर क्या विचार कर रहे हैं। It is important that what the general public, the philosophers of this age think about a certain issue. और ये महत्वपूर्ण है कि जो साधारण आम जनता है और जो विचार धारक लोग हैं वे किस बात को सोच रहे हैं। But of utmost importance is what does God think about an issue. और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि परमेश्वर किसी विषय के बारे में क्या सोच रहा है। We might come out with our own ideas which may seem very good to us and to other people. हम कई विचारधाराओं के ले सकते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं और दूसरों लोगों को भी अच्छी लगती We हैं। might come up with a way that might seem right. हम ऐसे मार्ग को सोच सकते हैं जो हमें अच्छा दिखाई देता है, But in the end, it will lead to destruction. किंतु अंत में वो विनाश को ले जाता है। Unless we come at the feet of Lord Sri Jesus and find out from Him what does He think about this. अगर हम परमेश्वर के पास आकर उनसे नहीं पूछ लेते कि परमेश्वर इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। So in our daily conversations and our thought process, और इसलिए हमारे दिन प्रतिदिन के वार्तालाप में और विचार में it is good to think. और यह अच्छा है कि हम सोचें। It is good to come to certain conclusions. और यह अच्छा है कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। And then we have to come at the feet of Lord Sri Jesus and find out what does He think about it. किंतु उसके बावजूद हमें प्रभु श्री यीशु के चरण पे आकर यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री यीशु इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। God has given us the scriptures. प्रभु श्री यीशु ने हमें धर्मशास्त्र दिया है। We can look into the scriptures and we can read the mind of God.
और हम धर्मशास्त्र में पढ़कर परमेश्वर के दिमाग को पढ़ सकते हैं। We can know what God is wanting out of us. और हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है। In the scripture we can find out how God thinks about a certain issue. और हम धर्मशास्त्र में इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर किसी विषय पर क्या सोच रहा है। And all the issues and the thoughts that we deal with, Lord Jesus is interested. और सारी चीजें, सारे प्रश्न और सारे जो विषय हैं जिसको हमें सामना करना पड़ता है, उसमें परमेश्वर भी रुचि रखता है। And Lord Jesus asked the question, what were you arguing with them about? और जब प्रभु श्री यीशु प्रश्न पूछते हैं कि तुम किस चीज पर वाद विवाद कर रहे थे, The whole crowd became silent. और पूरी भीड़ शांत हो जाती है। And one of the one man there, he says out. और एक व्यक्ति जो वहाँ पर है वो कहता है, He says, Guruji, I have a little son. और वो कहता है कि गुरुजी मेरा एक छोटा बालक है And he is possessed by a spirit. और उसका दुष्ट आत्मा है। And that spirit has taken away speech from my child. और उस दुष्ट आत्मा ने उसके बोलने की सामर्थ्य को ले लिया है। And he could not speak. और वो बोल नहीं पा रहा He है। tries to speak, but all bad sounds come, but no words come out. और वो बोलने की तो कोशिश करता है, कुछ आवाज उसके मुंह से निकलती है मगर शब्द नहीं निकल And that पाते। spirit seizes him and throws him into the ground violently. और वह जो दुष्ट आत्मा है वो उसे पकड़ती है, उसे बुरी तरह से जमीन पर पटक देती है। And he starts foaming from the mouth. और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। And when we try to grab him, all the foam and the saliva is coming out, so it's very difficult to control him. और जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह झाग और वो सब धूप उसके मुंह से निकलती है और उससे संभालना बहुत मुश्किल है। Sometimes he becomes very rigid. और वह कई बार बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। And his hands and feet will straighten up and it will not move at all. और उसके हाथ और पांव सीधे हो जाते हैं और वह फिर हिल भी नहीं सकते। I brought my son to you, but you were not there. Your disciples were there. और मैं इस लड़के को यहाँ लेकर आया किंतु आप यहाँ नहीं थे, आपके केवल शिष्य So थे। I requested your disciples if they could do something. और मैंने इसलिए आपके शिष्यों से पूछा कि वे कुछ कर सकते हैं क्या? And they tried. उन्होंने कोशिश तो करी It seemed like they were trying their best, और ऐसा लगता है कि वे कोशिश तो कर रहे थे but nothing happened. किंतु कुछ भी नहीं हुआ। And it seems like the argument with the teachers of the law and the disciples was about the possession of spirits and how to take out those spirits. और ऐसा लगता है कि प्रभु श्री यीशु का जो विद्वान लोग थे उनसे जो वाद विवाद था वह इस विषय पर था कि दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को किस तरह ग्रसित करती है और उन्हें कैसे हकाला जा सकता है। And Lord Jesus poses another question. और प्रभु श्री यीशु एक और प्रश्न पूछते हैं। Lord Shri Jesus says, "Oh, unbelieving and perverse generation, how long shall I stay with you?" और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि हे दुष्ट और अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। When Lord Shri Jesus says generation, और जब प्रभु श्री यीशु वंश की बात करते He is हैं, not talking about that particular generation at the time of Lord Jesus. और प्रभु श्री यीशु उस समय के जो लोग हैं उनके बारे में भर बात नहीं कर रहे हैं। Lord Shri Jesus is talking about this human race, the mankind. और प्रभु श्री यीशु इस मनुष्य जाति के बारे में बात कर रहे हैं Because we are unbelieving. क्योंकि हम अविश्वासी हैं And in our minds we are perverse. और हमारे दिमाग में हम दुष्ट हैं। And Lord Shri Jesus is making a statement that we are unbelieving and we are perverse in our mind. और प्रभु श्री यीशु इस बात को बता रहे हैं कि हम दुष्ट हैं और हम अविश्वासी हैं। You might think that we are good, हम सोच सकते हैं कि हम अच्छे हैं, but compared to God, we are unholy people. किंतु परमेश्वर की तुलना में हम अपवित्र लोग हैं। In comparison to God, we are perverse in our mind. और परमेश्वर की तुलना में हमारा दिमाग दुष्ट है। And when God looks at us, God says, "How long am I going to stay with you?" और परमेश्वर जब हमें देखता है तो कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। God is a holy God. परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। No one
who is unholy can stand in the presence of God. कोई भी जो अपवित्र है वो परमेश्वर के सामने नहीं रह सकता। If they try to stand too long, they are going to get consumed. और अगर परमेश्वर के सामने वो ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो वे उसमें जल जाएंगे। Lord Jesus says, "How long I shall stay with you?" और प्रभु यीशु पूछते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। We are in this world, हम इस दुनिया में हैं and there is a time limit. और एक सीमा है इस समय की। During this life, we have the chance to come at the feet of Lord Jesus. और इस जिंदगी में हमारे पास मौका है कि हम प्रभु यीशु के चरणों में आ जाएं। We don't have eternity time to decide how we can come to Jesus. हमारे पास अनंत काल का समय नहीं है इस बात का निर्णय लेने के लिए कि हम कब प्रभु यीशु We have got a very limited time. हमारे पास बहुत सीमित समय And within that limited time, we have to come to a decision. और इस सीमित समय में हमें किसी निर्णय पे आने की आवश्यकता And है। if we come at the feet of Lord Shri Jesus, और अगर हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आते हैं, He has the power to take away all our unbelief and perversion from us. और प्रभु श्री यीशु के पास सामर्थ्य हमारे सारे अविश्वास को और हमारी सारी दुष्टता को हमसे निकाल। Then we can live in eternity with Him. उसके बाद हम अनंत काल तक प्रभु श्री यीशु के साथ रह सकते And हैं। Lord Shri Jesus makes another question at that time. और प्रभु श्री यीशु एक और प्रश्न को उस समय पूछते हैं। First He was saying, "Oh unbelieving and perverse generation, how long I will stay with you?" और पहला प्रश्न ये था कि हे दुष्ट और अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। The second question that Lord Shri Jesus says is, "How long shall I put up with you?" और दूसरा प्रश्न प्रभु श्री यीशु पूछते हैं कि कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। Lord Shri Jesus is looking at us, and if we continue to reject Him again and again and again, Lord Shri Jesus asks us the question, "How long shall I put up with you?" और जब प्रभु श्री यीशु हमें देखते हैं और हमें देखते हैं कि हम बार बार प्रभु श्री यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, तो प्रभु श्री यीशु पूछते हैं कि मैं कब तक तुम्हें सहूंगा। God is very patient. प्रभु श्री यीशु जो है बहुत ही पेशेंट हैं, And He is going to wait on us. और प्रभु श्री यीशु इंतजार करेंगे हमारे And लिए। He will talk to us in different ways. और प्रभु श्री यीशु अलग अलग तरीके से हमसे बात And He करेंगे। is waiting for us to respond positively to Him. और प्रभु श्री यीशु इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम सकारात्मक रूप से प्रभु श्री But a यीशु को time will come when God says, "This is enough. I cannot put up with you anymore." और एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा कि बहुत हो चुका, अब मैं सह नहीं सकता। God is not a God who is very impatient. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि जल्दबाज हो। For me, sometimes I think that I'll ask one time and second time and third time is the last time. और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मुझसे कुछ पूछे पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार आखिरी बार, After the third time I lose my patience. और तीसरी बार मैं अपना धैर्य खो देता But हूँ। God is not like that. किंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। God is willing to forgive us. God is willing to wait on us for a long time. परमेश्वर चाहता है कि हमें माफ करे और परमेश्वर लंबे समय तक इंतजार करता है। But we have to know that He is not going to wait forever for us. किंतु हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमेशा हमेशा इंतजार He नहीं will not करेगा। always put up with us. वो हमेशा हमारी नहीं सहेगा। We have got a limited life, and within that life we have to come at the feet of Lord Shri Jesus. हमारे पास एक सीमित जिंदगी और सीमित जिंदगी के अंदर हमें प्रभु श्री यीशु के पास आने की आवश्यकता There है। are two things that limit our time frame. और दो चीजें हैं जो हमारे समय को सीमित करती हैं। One is Lord Shri Jesus can come at any time, एक यह है कि प्रभु श्री यीशु किसी भी समय वापस लौट सकते हैं, and the other is that we may lose our life, physical life, anytime. और दूसरी यह है कि हम अपनी शारीरिक जिंदगी को कभी भी खो सकते हैं। Between now and that time, we have the time to come at the feet of Lord Shri Jesus. और अभी के समय और उस समय के बीच में हमारे पास समय है कि हम प्रभु श्री यीशु के चरणों After में आ raising जाएं। that question, Lord Shri Jesus says, "Bring that boy to me." और उस प्रश्न को उठाने के बाद प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि उस लड़के को, बालक को मेरे पास So लाओ। they gave some space and they asked the boy to come forward. और फिर वे रास्ता बनाते हैं, उस बालक को आने के लिए बुलाते The हैं। boy was possessed by a spirit. और वह बालक जो है वह दुष्टात्मा से ग्रसित था। As soon as the spirit
saw Lord Shri Jesus, और जैसे दुष्टात्मा ने प्रभु श्री यीशु को देखा, the spirit convulsed that boy very violently. और उस दुष्टात्मा ने उस बालक को बहुत बुरी तरह मरोड़ा, And that spirit threw that boy to the ground. और उस दुष्टात्मा ने उस बालक को जमीन पर पटक दिया, And he was going into convulsions and rolling around here and there. और वह बुरी तरह से मरोड़ते हुए बहुत बुरी तरह इधर उधर जा रहा था, And he was foaming from the mouth. और उसके मुंह से झाग निकल And रहा था, nobody wanted to touch him. और कोई भी उसे छूना नहीं And he will चाहता roll on that side and the people will move away because they didn't want all that foam and all that saliva to come in on their legs. और वह उस तरफ को पलटी खाता था, लोग उससे दूर हट जाते थे, Then when he will roll at other place, people will move from that side. और दूसरी तरफ को जब पलटी खाता था तो लोग दूसरी तरफ से भी हट जाते थे, And people were surprised, what happened to this boy? और लोग आश्चर्य कर रहे थे कि बालक के साथ क्या समस्या When he है। is coming to Lord Shri Jesus, at that time he is doing like this. और जब प्रभु श्री यीशु के पास आ रहा है तब ऐसा कर रहा है। Lord Shri Jesus poses another question. प्रभु श्री यीशु एक और प्रश्न को पूछते हैं, He asked the father, how long has he been like this? और पिता से पूछते हैं कि बालक कब से ऐसा था। Why does Lord Shri Jesus poses that question? प्रभु श्री यीशु इस प्रश्न को क्यों पूछते हैं? Lord Jesus is the creator. प्रभु श्री यीशु सृष्टिकर्ता He है, is all-knowing. प्रभु श्री यीशु सब कुछ जानते He हैं, knows it from the beginning to the end. और शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु There श्री is यीशु nothing जानते hidden हैं। from him. और प्रभु श्री यीशु के सामने कुछ भी Lord Shri छुपा Jesus नहीं is the है, creator of each and every human being. और प्रभु श्री यीशु हर व्यक्ति की सृष्टि करता And है, Lord Jesus knows each and every move that we are going to make. और प्रभु श्री यीशु इस बात को भी जानते हैं कि हर चीज जो हम करते हैं। Then Lord Shri Jesus is asking, how long has he been like this? और प्रभु श्री यीशु पूछते हैं कि ये कब से ऐसा है। There is a reason for that. उसके लिए एक कारण है। The reason is Lord Shri Jesus wanted to let the other people hear what is the answer for that question. और उसका कारण ये है कि प्रभु श्री यीशु ये बताना ये चाहते थे कि लोग जो आसपास खड़े हैं वो उसका The जवाब दें। crowd that was around there, they did not know how long this boy has been like this. जो भीड़ आसपास थी वह नहीं जानती थी कि कब से ये बालक इस तरह से है। When there is a problem from yesterday, we think, yeah, that is a problem. और जब हमारे पास कल से समस्या होती है तो हम सोचते हैं कि हाँ वो समस्या If है। there is a problem for a few weeks, we think, yeah, that is a problem. और जब कुछ हफ्ते तक समस्या होती तो हम सोचते हैं कि हाँ ये समस्या है। When we hear there is a problem for a few months, we think that, oh, I do not know how I'm going to tackle this. और जब बहुत दिन महीनों तक वो समस्या होती है तो हम सोचते हैं कि मालूम नहीं इस समस्या को हम किस तरह से सुलझेंगे। But when the problem has been there for many years, और जब कई सालों से समस्या हो then we understand that we have tried everything, but we are unable to do it. तब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमने सब कुछ कोशिश कर ली किंतु हम अब कुछ भी नहीं कर पा रहे And हैं। Lord Shri Jesus wanted the crowd to know how long this boy has been like this. और प्रभु श्री यीशु इस बात को चाहते थे कि भीड़ ये जाने कि कब से यह बालक इस And तरह their से। father says that, Guruji, he has been like this from the childhood. और वह पिता कहता है कि गुरुजी यह तो बचपन से ही ऐसा ही था। We are so frustrated. हम बहुत ज्यादा उदास हैं, Sometimes this spirit will throw him in fire. और कई बार ये दुष्टात्मा उसे आग में डाल देती It is है, very difficult to do anything in the kitchen. और रसोई घर में कुछ करना बहुत मुश्किल है। Near fire, then sometimes he tries to go there and throw himself there. और अगर वहाँ कहीं आग लगी हुई हो, आग जल रही हो, तो दुष्टात्मा इसे उस आग में डाल देती है। And sometimes this spirit throws him into water. और कई बार ये दुष्टात्मा उसे पानी में डाल देती We है। have to be very careful. There's a well out there. अगर कुआं वहाँ पर है तो हमें बहुत सावधान रहना Well, पड़ता it है। seems like the spirit is trying to kill my child. और ऐसा लगता है कि दुष्टात्मा मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। If you can do something, Amen. please have mercy on us and do something. अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया हम पर दया करें और कुछ करिए। Lord Shri Jesus poses another question. प्रभु श्री यीशु एक और प्रश्न को पूछते हैं। He says, if you can, प्रभु श्री कहते हैं क्या आप कुछ कर सकते हैं? why are you making a statement, if I can? आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं?
Everything is possible for those who believe. जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। When we come at the feet of Lord Shri Jesus, जब हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आते हैं, we ask Him something. हम प्रभु श्री यीशु से कुछ मांगते हैं। We don't ask Him with the statement, if you can do this, please do it. और हम ऐसा नहीं बोलते कि प्रभु श्री यीशु अगर आप कर सकते हैं तो करिए। The right way of asking Lord Shri Jesus is the way that the leper asked. और सबसे सही तरीका यह है प्रभु श्री यीशु से पूछने का, जो कि जो कोढ़ी था उसने पूछा। One leper came to Lord Shri Jesus and he asked, if you are willing, you can make me clean. और उस कोढ़ी ने आकर प्रभु श्री यीशु से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हैं। The question is not whether Jesus can or he cannot. और प्रश्न यह नहीं है कि प्रभु श्री यीशु कर सकते हैं या नहीं। That is why Lord Shri Jesus poses the question, if you can, what are you asking? और इसीलिए इस प्रश्न को उसको सुनकर प्रभु श्री यीशु ने पूछा कि अगर आप कर सकते हैं इसका क्या मतलब है? Because there is nothing impossible for God. क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Lord Jesus can do anything and everything. प्रभु श्री यीशु कुछ भी कर सकते हैं। Any problem that we have, we might think that it's a great problem. और कोई भी समस्या हमारे पास तो हम सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी But समस्या in the है, eyes of God, it is not that great of a problem. किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो कोई बड़ी समस्या नहीं। Lord Shri Jesus can resolve any problem. प्रभु श्री यीशु किसी भी समस्या को सुलझा The सकते question हैं। is, he is willing or not. और प्रश्न यह है कि प्रभु श्री यीशु चाहते हैं या नहीं। And we can come at the feet of Lord Shri Jesus and ask, Lord Shri Jesus, if you are willing, I have this problem, please take it. और हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आकर आप पूछ सकते हैं कि प्रभु श्री यीशु अगर आप चाहते हैं तो आप इस समस्या And को that ले father सकते हैं। came to Lord Shri Jesus and knelt before him. और वह पिता प्रभु श्री यीशु के चरणों में आया और उसने घुटने टेके And he said, I do believe, help my unbelief. और उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ, कृपया मेरा विश्वास का उपाय करिए। We can come to Lord Shri Jesus and say, Lord Shri Jesus, I do want to believe and I have unbelief, but help my unbelief. और हम प्रभु श्री यीशु के पास आकर आज कह सकते हैं कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ, कृपया मेरा विश्वास को आप हटा दीजिए। Then Lord Shri Jesus scolded that spirit. और प्रभु श्री यीशु ने उस दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी And he said, you deaf and mute spirit, come out of him. और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा उसमें से निकाला And never enter into him again. और उसमें फिर से प्रवेश न करना। And then the spirit, when he was commanded to come out, और जब प्रभु श्री यीशु ने दुष्ट आत्मा को बाहर निकलने की आज्ञा the दी spirit turned around very violently inside him. और बहुत बुरी तरह से दुष्ट आत्मा उसके अंदर उसको And this time the spirit so violently threw him on the ground, much more pressure than before. और उस दुष्ट आत्मा ने उस बालक को मरोड़ कर उसे बहुत बुरी तरह से पटक दिया। And for a few seconds he was doing all the conversions much more than what he was doing before. और वो पहले से भी बहुत ज्यादा वो मरोड़े खा रहा था, बहुत ज्यादा परेशानी में And था। people thought, what happened when Lord Shri Jesus was asking the spirit to go, the spirit is attacking the boy more. और लोग सोच रहे हैं कि प्रभु श्री यीशु जब इसे आज्ञा दे रहे हैं निकलने की, तो ये दुष्ट आत्मा तो और भी ज्यादा इस बालक को परेशान कर रही But है। after the spirit had attacked the boy much more violently, the spirit came out. और दुष्ट आत्मा ने इस बालक को और भी ज्यादा तीव्रता के साथ परेशान करने के बाद वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। And this boy was rolling around so violently and so fast. और ये बालक जो है बहुत बुरी तरह से गुलाटियां खा रहा था, बहुत बुरी तरह से वहाँ पर था। Suddenly he stopped moving. और अचानक वो पूरी रीति से शांत हो गया And he did not move. और वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। Just few seconds ago he was moving so violently that he was out of control. और कुछ समय पहले तो वो इतने बुरी तरह से हिलडुल रहा था कि नियंत्रण के बाहर था। Now he is not moving at all. और अब वो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है। They waited for a few seconds. उन्होंने कुछ समय तक इंतजार किया They waited for a few more seconds. और उन्होंने थोड़े और समय के लिए इंतजार किया They waited for a few more seconds. और उन्होंने थोड़े और समय के लिए इंतजार किया। Somebody said, I think this boy died.
और किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बालक तो मर गया, I think this spirit might have killed him. और ऐसा लगता है कि इस दुष्ट आत्मा ने इस बालक को मार दिया। He is not moving at all. देखो वो तो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा। If he is alive, he should move a little bit. अगर वो जिंदा होता तो थोड़ा तो हिलता। Lord Shri Jesus went to the boy. और प्रभु श्री यीशु उस बालक के पास गए, Lord Jesus stooped down और प्रभु श्री यीशु ने झुके, and he held his hand. और प्रभु श्री यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा, And with a little jerk, Lord Shri Jesus pulled him up, और प्रभु श्री यीशु ने उसे तेजी के साथ अपनी ओर खींचा, and the boy stood up. और वह लड़का खड़ा हो गया, And he was completely all right. और वो बिल्कुल सही था। And Lord Jesus gave that boy to the Father. और प्रभु श्री यीशु ने उस बालक को पिता के हाथ में दे दिया। For Lord Jesus, everything is possible. प्रभु श्री यीशु के लिए सब कुछ संभव है। There is no power in this world that is not under the control of Lord Shri Jesus. कोई ऐसी सामर्थ इस दुनिया में नहीं है जो प्रभु श्री यीशु के नियंत्रण के बाहर। There is no power that can harm us. और कोई ऐसी सामर्थ नहीं है जो हमें परेशान कर सकती है। If we are under the shelter of Lord Shri Jesus, we are protected from all evil powers. अगर हम प्रभु श्री यीशु के शरण में हैं तो हम सारी दुष्ट ताकत से बचे हुए हैं। They later on, when they went home, और जब वे बाद में वापस घर गए, the disciples asked the question. और शिष्यों ने प्रभु श्री यीशु से पूछा, Lord Shri Jesus, why were we not able to drive out the spirit? उन्होंने पूछा, प्रभु श्री यीशु हम क्यों उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? And Lord Shri Jesus gives them 3 reasons. और प्रभु श्री यीशु ने 3 कारण दिए। 2 reasons that Lord Shri Jesus gave. और 2 कारण जो प्रभु श्री यीशु ने दिए। Lord Shri Jesus said that this kind can come out only by prayer and fasting. और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि यह इस तरह की दुष्ट आत्मा केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा निकल सकती है। There are evil powers around us. हमारे आसपास दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट शक्तियां When हैं। we pray to Lord Shri Jesus, it toughens us up. और जब हम प्रभु श्री यीशु से प्रार्थना करते हैं तो ये हमें और ज्यादा सख्त करता है। And fasting and prayer, it grows us up in such a way that we can go against the power of the devil and use spirits. और उपवास और प्रार्थना हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाती है इस बात में कि हम दुष्ट आत्माओं के विरोध में जा सकते हैं। And there are different kinds of spirits. और विभिन्न तरह की आत्माएं हैं। And some of the evil spirits can be controlled and managed only by fasting and prayer. और कुछ दुष्ट आत्माएं केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही नियंत्रण में लाई जा सकती हैं। And then Lord Shri Jesus gives the third reason too. और फिर श्री यीशु तीसरा कारण भी देते हैं। And Lord Shri Jesus says, because you have so little faith. और फिर श्री यीशु कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास इतना कम है। And Lord Shri Jesus says that if you have faith as little as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will happen. और फिर श्री यीशु कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह दोगे कि ये उखड़ कर यहाँ से चला जाओ और चला जाएगा। And Lord Shri Jesus makes a statement that nothing will be impossible for you. और फिर श्री यीशु एक वाक्य को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। Because when we come under the shelter of Lord Shri Jesus, क्योंकि हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में जब आते हैं we are not doing things with our own power. तो हम अपनी खुद की सामर्थ्य से चीजों को नहीं कर रहे हैं, But we are doing things from the power that we receive from God, who is all powerful. हम परमेश्वर के सामर्थ्य जो हमने प्राप्त किए परमेश्वर से, उससे हम कर रहे हैं। परमेश्वर सब सामर्थ्य है। So the questions that were raised today, तो आज जो प्रश्न पर प्रभु श्री यीशु ने जो उठा उन्हें हमने देखा, any issues that we have to think, what does God think about that issue? कोई भी समस्या हमारे पास है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता We है। have to remember that Lord Shri Jesus will not be with us forever waiting for us. और हमें याद रखना है कि प्रभु श्री यीशु हमारे लिए हमेशा इंतजार नहीं करेंगे। And Lord Shri Jesus will not put up with us because we have got limited time. और प्रभु श्री यीशु हमारे साथ प्रभु श्री यीशु धैर्य नहीं रखेंगे हमेशा के लिए। We cannot question Lord Shri Jesus if you can, because everything is possible with God. हम प्रभु श्री यीशु से ये नहीं कह सकते कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो, क्योंकि प्रभु श्री यीशु के लिए सब कुछ संभव है। Lord Shri Jesus knows each and every detail of our life.
प्रभु श्री यीशु हमारी सारी चीजों को जानते हैं And Lord Shri Jesus wants us to be in prayer and in fasting and to have faith in Him. और प्रभु श्री यीशु चाहते हैं कि हम प्रभु श्री यीशु से प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु श्री यीशु पर विश्वास करें। If we think that we have unbelief in our heart, अगर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में अविश्वास है, we can come to Lord Shri Jesus. हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आ And we सकते can हैं say, Lord Shri Jesus, I do want to believe. और हम प्रभु श्री यीशु से कह सकते हैं कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ, Please help my unbelief. कृपया मेरा विश्वास का So उपाय as we करिए। come under the shelter of Lord Shri Jesus, जैसे ही प्रभु श्री यीशु के चरणों में आ जाते Holy हैं, Spirit takes control over us. पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी का नियंत्रण लेता Father है attracts us to Him. और पिता हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं We come to the realization that we are unholy people. और हम इस बात को जान लेते हैं कि हम अपवित्र हैं। We, in comparison to God, in the presence of God, suddenly we realize that we are sinners. परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की तुलना में हम इस बात को जान लेते हैं कि हम पापी हैं And we can ask Lord Shri Jesus, please forgive all my sins. और हम प्रभु श्री यीशु से मांग सकते हैं कि हमारे सारे पापों को वे माफ करें Make me clean and holy to stand in front of you. और मुझे पवित्र करें और आपके सामने खड़े होने के लिए आप योग्य बनाएं And Lord Shri Jesus can do it for us. और प्रभु श्री यीशु ऐसा कर सकते We हैं। will have a minute of silence. हमारे पास 1 मिनट होगा ज्ञान मनन का And during that minute of silence, we can enter into a conversation with Lord Shri Jesus. और ध्यान मनन के समय में हम प्रभु श्री यीशु से वार्तालाप कर सकते हैं Any problem that we have, we can place it at the feet of Lord Shri Jesus. और जो कोई भी समस्या हमारे पास है वो हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में डाल सकते There हैं। is nothing that is impossible for Lord Shri Jesus. प्रभु श्री यीशु के लिए कोई भी असंभव नहीं है। He can resolve all our problems. प्रभु श्री यीशु हमारी सारी समस्याओं को सुलझा सकते And हैं when we come at Lord Shri Jesus, we will realize that He wants us to live with Him forever and ever. और जब हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आ जाते हैं तो कि प्रभु श्री यीशु हमें चाहते हैं कि हम उनके साथ हमेशा हमेशा रहें And Lord Shri Jesus can give that eternal life to us so that we can be with Him forever. और प्रभु श्री यीशु हमें वो जिंदगी दे सकते हैं कि हम उनके साथ हमेशा हमेशा रहें। There is no one else who can give us that. कोई और दूसरा नहीं है जो हमें ये दे सकता We है। can come at the shelter of Lord Shri Jesus. हम प्रभु श्री यीशु के शरण में आ सकते We will have a minute.